सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, उससे पहले 1 घंटा बैठो, बस 1 घंटा बैठो और लिखो मेरे से इस साल क्यों नहीं हुआ, कौन सा सब्जेक्ट मेरा सबसे वीक रह गया। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री पे काम करो। फिजिक्स का फॉर्मूला याद नहीं था सारा, याद करो। तुम अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो मतलब 11-12 तो पूरा कंप्लीट कर चुके हो ना, तो लिखो ना फॉर्मूला। लिखा हुआ है तुम्हारा कहीं कि फिजिक्स का सारा फॉर्मूला कहीं तुम लिख के रखे हो? नहीं रखा हुआ है। केमिस्ट्री में सारा तुमको ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शंस याद है? नहीं याद है। क्या तुम 12th पास बच्चे हो, तुमको अगर बोला जाए कि पीरियोडिक टेबल बिना देखे हुए लिखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब लिखो, क्या तुमको याद है? नहीं याद है। तो जब बेसिक्स ही तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, ये सब तो मतलब बेयर मिनिमम। सो द डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट वेदर आई शुड टेक अ ड्रॉप इज येस। इफ यू वांट टू, yes, but everyone should have a plan B. If you are appearing for the first time, for the second time, for the third time, if you want to take a drop, enroll yourself in some graduation course. Suppose you are not able to crack the examination on the next year as well, then you would not have a regret, your parents would not have a regret that मेरा बच्चा 12th पास ही रह गया, मेरा बच्चा 1 साल ग्रेजुएशन का कंप्लीट कर चुका है। ये पेरेंट्स के मन में भी एक सेटिस्फैक्शन रहेगा। लेकिन नीट एग्ज़ाम में बैठने से पहले ये दिमाग में रखना कि प्रेशर बहुत हाई है, कंपटीशन बहुत हाई है। अगर तुमको नीट निकालना है तो तुम्हारे लिए सिर्फ नीट ही होना चाहिए 1 साल तक, और कुछ नहीं होना चाहिए। सिंस मैनी स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन द ड्रॉपर स्ट्रैटेजी. If you are going to appear for NEET 2026, then this video is for you. But before starting the video, I guess every student who has appeared for the NEET 2025, they have a dilemma in their head, because paper was not as same as it was last year. The physics section was quite difficult and overall paper was difficult. Many students can't even solve all the questions of physics. Even the student couldn't attempt all the question of physics because the paper was quite lengthy, so they had to derive the formula in the exam. Even the teachers of physics, they were also shocked. The difficulty level of the paper was, I have no words. Students are confused that whether they should take a drop or not. Now I'll give you a suggestion. If you are just appearing student, you just appeared for class 12th, you should take a drop. But if you are not a appearing student, you have already dropped 2 times or 3 times, if you want to take a drop, if I would be your parent, I would have allowed you. But the problem is that time waits for none, and in this competitive world you need to be financially independent as soon as possible. So my suggestion would be to every single student, if you are appearing for the first time, for the second time, for the third time, if you want to take a drop, enroll yourself in some graduation course. This is very important for you, and don't think that the graduation course will cause a barrier in your NEET preparation. No, I'll tell you why. Enroll yourself in such kind of graduation course which is kind of non-attended. So the direct answer to the question that whether I should take a drop is yes. If you want to, yes, but everyone should have a plan B. No one knows that even after giving your 100%, those 3 hours of NEET 2026 examination will be good for you. Do you know that your health will be fine on the day? Are you sure that you will not vomit on the day, or you would not have a loose motion on the day, or you would reach too early to the center,
Or are you sure that you would not reach late to the center? No one knows what will happen on the day. So do yourself a favor. If you want to take a drop, you should, but have a plan B. And not only for this examination, for every single thing in your life should have a plan B. Because everything going right in your life right now is not, nothing is permanent. So take a drop, but enroll yourself in a graduation course which is non-attending, so that if you are, suppose you are not able to crack the examination on the next year as well, then you would not have a regret, your parents would not have a regret that मेरा बच्चा 12th पास ही रह गया, मेरा बच्चा 1 साल ग्रेजुएशन का कंप्लीट कर चुका है, ये पेरेंट्स के मन में भी एक सेटिस्फैक्शन रहेगा. फर्स्ट पॉइंट. और सेकेंड पॉइंट इज कि इफ यू सीरियसली वांट टू टेक अ ड्रॉप, देन आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन दैट you yourself want to take a drop, or you are just looking at your friends. मेरे फ्रेंड्स ड्रॉप ले रहे हैं तो ही मैं लूँ. देखा देखी नहीं करना चाहिए. और जो बच्चा सच में सीरियसली पढ़ा है, जो बॉर्डर पे है, 550 से 600 के बीच में है, उसको ड्रॉप लेना ही चाहिए. जो बच्चा 400 में है, उसको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी ड्रॉप ले सकता है. जो बच्चा 200 में है, 300 में है, आप क्या सोच के ड्रॉप लेना चाह रहे हो, एक बार खुद से पूछो कि आप देखा देखी में ले रहे हो या आप सीरियसली इस बार काम करने वाले हो. सो वेदर यू शुड टेक अ ड्रॉप इज द क्वेश्चन विच टोटली डिपेंड्स ऑन योर इनर वॉइस, इनर सोल. यू आर रेडी फॉर इट और नॉट. इट्स नॉट अ क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क टू योर टीचर, यू शुड आस्क योर सेल्फ. ओके. पॉइंट नंबर 2, मैनी स्टूडेंट्स टेल मी मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं ड्रॉप लेने के लिए, पैसा का भी लॉस है, और उनका ये कहना भी है कि हम तुम पे क्यों इन्वेस्ट करें, तुमने तो रिजल्ट नहीं दिया 2 साल या 2 से ज़्यादा साल भी अगर, तो क्या करें. जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स से 8,000 9,000 का सपोर्ट लेकर के ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं. इतना पेरेंट्स कर देते हैं. नहीं मान रहे, बार बार मनाइए, वो मानेंगे. अब ऑनलाइन कोर्स लेने में क्या ड्रॉबैक है कि आपको अपने आप को खुद से सेल्फ डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा और अपने आप को कंसिस्टेंट खुद रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर मेरा क्लास 8 AM से है तो मैं 8 AM में रोज़ घर में ही पढ़ना स्टार्ट करूँ. रिलेटिव आए, भाई बहन आए, दोस्त आए, मेरे को कोई लेना देना नहीं. लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है बेटा ड्रॉप लो, then enroll yourself in a offline course that would be better than online course. क्यों? क्योंकि उसमें आपको जाना पड़ेगा, तो रूटीन में आप बंद होगे. आप अपने आसपास अपने कॉम्पिटिटर्स को देखोगे, उसमें से कौन किस तरह से पढ़ रहा है वो भी आपकी नज़र में आएगा. रैंक क्लास का अनाउंस होगा, वो भी आपकी नज़र में आएगा. तो दैट वुड बी अ लाइक अलग ही मोटिवेशन फॉर यू. लेकिन अगर आप अंदर से ही मोटिवेटेड हो तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो. ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, डिपेंड ऑन 2 फैक्टर. फर्स्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट. सेकंड, मोटिवेशन लेवल. लेकिन नीट एग्ज़ाम में बैठने से पहले ये दिमाग में रखना कि प्रेशर बहुत हाई है, कंपटीशन बहुत हाई है. अगर तुमको नीट निकालना है तो तुम्हारे लिए सिर्फ नीट ही होना चाहिए 1 साल तक, और कुछ नहीं होना चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, उससे पहले 1 घंटा बैठो, बस 1 घंटा बैठो और लिखो मेरे से इस साल क्यों नहीं हुआ, कौन सा सब्जेक्ट मेरा सबसे वीक रह गया. केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री पे काम करो. फिजिक्स का फॉर्मूला याद नहीं था सारा, याद करो. तुम अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, मतलब 11 12 तो पूरा कंप्लीट कर चुके हो ना, तो लिखो ना फॉर्मूला. लिखा हुआ है तुम्हारा कहीं कि फिजिक्स का सारा फॉर्मूला कहीं तुम लिख के रखे हो? नहीं रखा हुआ है. केमिस्ट्री में सारा तुमको ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शंस याद है? नहीं याद है.
क्या तुम 12th पास बच्चे हो, तुमको अगर बोला जाए कि पीरियोडिक टेबल बिना देखे हुए लिखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब लिखो, क्या तुमको याद है? नहीं याद है। तो जब बेसिक्स ही तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, ये सब तो मतलब बेयर मिनिमम है, तो इसको कंप्लीट करो, फिर आगे अभी से लग जाओ, एक भी दिन वेस्ट मत करो। क्यों नहीं हुआ ये तो पूछो अपने आप से, क्यों नहीं हुआ, क्या कमी है मेरे में। अब क्लासेस स्टार्ट हो या नहीं हो, ऑनलाइन ऑफलाइन डजंट मैटर, तुमको ये सारी चीज़ें जो मैंने बोला, पूरा पीटी आना चाहिए, खुद से लिखो, ट्रिक बना के लिखो, जो भी करना है करो, पर तुमको पीटी लिखना होगा। नेम रिएक्शंस याद करने होंगे। बायोमोलिक्यूल्स के सारे स्ट्रक्चर याद हैं, बनाने आते हैं आपको। सारे पॉलीमर्स का मोनोमर याद है आपको? नहीं याद है। क्रेब्स साइकिल याद है? एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स याद हैं? आस्क योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि तुम अगर स्टूडेंट हो तो सबसे पहले अपने आप को कैटेगराइज करो इस लेवल पे कि तुम किस तरह के स्टूडेंट हो। ये अपने आप को बताओ, और किसी को नहीं, अपने आप को बताओ कि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज हूँ, नहीं मैं ठीक ठाक पढ़ता हूँ। ये 3 कैटेगरी में अपने आप को डिवाइड करो और उसी हिसाब से पूरे साल अपने बारे में सोचते रहना और उसी हिसाब से तैयारी करते रहना। अगर तुम बिलो एवरेज हो तो तुमको तो भाई किसी से बात ही नहीं करना है, तुमको सुबह से रात तक सिर्फ पढ़ना है और अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्रैक करना है कि आज मैंने ये सीखा, तब तो तुमको और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। अगर तुम एवरेज हो मतलब कोई सब्जेक्ट तुम्हारा खराब है, कोई सब्जेक्ट तुम्हारा सही है, कौन सा खराब है वो तुम खुद से डिसाइड करो। और अगर तुम एक टॉप नॉच स्टूडेंट हो तो रिवीजन पे फोकस करो, हर चीज़ को दिमाग में रखने की कोशिश करो एक साथ। ओके, स्टूडेंट कैसे हो अगर उस बेसिस पे अपने आप को कैटेगराइज कर चुके हो तो एग्जाम में क्या गलती करते हो वो सोचो। नहीं आता है तो सीखो, पहले आते हुए भी गलत हो जा रहा है तो देखो क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है भाई, कि आ भी रहा है फिर भी गलत हो जा रहा है। आराम से पेपर बनाओ, कौन सा सेक्शन पहले बनाना है वो सोचो, जो तुमको सबसे आसान लगता हो। जो भी, अगर तुमको फिजिक्स भी सबसे आसान लगता है सबसे पहले वही बनाओगे, ताकि जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो कर लो। अगर बायो सबसे आसान लगता है तो बायो ही बनाओगे, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को बायो ही आसान लगता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी सेल्फ डिसिप्लिन। और वीडियोस चाहिए बोल देना। स्ट्रैटेजी पूछा था ना, तो स्ट्रैटेजी ये है, सबसे पहले ड्रॉप लेना है अगर अपने आप को किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में इनरोल करो, क्योंकि रास्ते पे हर बंदा ग्रेजुएट है, तुमको उससे बेटर रहना है तो 12 पास बन के तो नहीं रह सकते। दूसरा, किस तरह के तुम स्टूडेंट हो अपने आप से पूछो। तीसरा, शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए सारे बने हुए। चौथा, जो मैंने अभी बोला नहीं था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुमने बना लिया सारा पूरा? अगर नहीं बनाया है तो अभी बैठ के तुम क्या कर रहे हो, बनाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का प्रीवियस ईयर बनाओ। डिसिप्लिन रहो, पेरेंट्स को कन्विंस करो, कोई डिस्ट्रैक्शन मत पड़ना एक साल, तो कौन रोक सकता है तुम्हें करने से, करो। और कोई वीडियो चाहिए तो बता देना, कमेंट करना।